Okay student, let's start chapter number 1, Arrival of Europeans in India. But before starting, I suggest you, if you haven't read the chapter once, you must read the chapter before my explanation. Then after you can watch the video. So students, we all know that many years ago, our country was enslaved by the Britishers. They had total control on our country. So in this chapter, it is totally available about the European nations, how they enter in our country and how they get control over our country, India. Arrival means to come in India. Arrival of Europeans in India. Okay. Now I am going to explain you line by line. Okay. We have learned in previous standard that many years ago our country was one of the leading countries in the world. In previous standard, we have already learned that our country was a leading country in the world. Other countries are following our country in wealth and prosperity. Our country was distinct in the whole world. Our country have distinct position and distinct value in whole world. Distinct, that means different. The people of various countries were being influenced by our culture and prosperity. The people of various countries. The people of various countries, they were influenced, they were attracted by Indian culture and Indian prosperity. Many people worldwide were eager to enter into trade with our country and earn wealth out of it. Many people worldwide, other people of different countries, they were very eager to enter with a trade with India and earn wealth. Earlier, the merchants from the various countries came to India from the northwest by the land route for the purpose of the trading. We all know that earlier the European natives entered in our country with the only objective for trading. So here earlier the merchant from the various country, they entered from northwest. They entered in India from the northwest by the land route for the purpose of trading. For years, the Arab trader undertook trade through land route, but as situation changed, trade through land route stopped. Now, many years the Arab trader undertook the trade through the land route with India, but as the situation changed, something got happened, so the land route got stopped. So now the exchange of the commodities or products between the European nations and India was also stopped. Now the consequently demand for Indian commodities, suddenly the exchange of the products will stop. Then what will happen? Consequently the demand for the products like silk, cotton, clothes, muslin, black pepper, spices, etc. increase in the European countries. The demands for this product is increased in the European nations because they got stopped the exchange of the commodities because of the stop land route. Now, to take the advantage of the situation, many countries of Europe start searching for sea route to India. Now, to take the advantage of those commodities which is available to European nation now has stopped. So, to take that advantage, many European nations start searching sea route to India. Now, they wants to find sea route to India. Subsequently, some adventurous sailors of Europe and other countries started the search of sea route to came India. Now it is mandatory to find the sea route to India because the demand for the commodities are increasing consequently. So some adventurous sailors of Europe, they started to search sea route to came India. They started search to find out the sea route to India, to enter in India. Okay. Now next here some sailors, brave sailors description is given to you. First comes Christopher Columbus. Now let's see who is the Christopher Columbus. Columbus, an Italian explorer, was one of the brave sailors who ventured out to find the sea route to India. Columbus is an Italian explorer. वो एक Italian explorer था.
was one of the brave sailor. He is one of the brave sailor, out of the sailors one of the brave sailor who ventured, जिसने साहस किया to find out the sea route to India. He thought that one can go to the east view west also. Now he is a sailor and he thought that one can go to east. वो ऐसा मानते थे कि ईस्ट जाए, कोई भी ईस्ट जा सकता है वेस्ट होकर. ओके, वाई डिड ही बिलीव सो? डू यू नो वाई डिड ही बिलीव सो? कैन एनीवन गो ईस्ट वाया वेस्ट? दैट यू हैव टू थिंक. ओके, think about it. Now Columbus started his journey to India, accidentally reached America. Now the Columbus started his journey to search the sea route for India, but accidentally he reached to America. As long as he lived, he was under the misconception that he had discovered the sea route to India. As long as he lived, जितना टाइम तक वो रहे, वो इस मिसकॉन्सेप्शन में रहे कि उन्होंने सी रूट फाइंड किया है इंडिया के लिए, बट ही हैवंट. Hence even today the natives of America are called Red Indians and the island group in the Caribbean is known as West Indies. So even today the natives of America, natives of America are also called Red Indians and the island group is Caribbean is known as West Indian. That island group is also known as West Indies. Now here we got clear idea that Christopher Columbus haven't find out the sea route to India, but he was in the misconception that he find the sea route to India. Okay student, the next sailor come Vasco da Gama. Now let's see who's Vasco da Gama. Vasco da Gama, a native of Portugal, discovered the sea route to India. Now here's the man who really discovered the sea route to India. Vasco da Gama was the man who discovered, Vasco da Gama was the sailor who discovered the actual sea route to India. Okay, he encircled the Cape of Good Hope. He encircled, उन्होंने Cape of Good Hope का राउंड लगाते हुए from South Africa he reached to India at the port of Calicut. कलिकट का जो पोर्ट है वहाँ पर पहुँचे. On which date? 22nd May 1498. After crossing the Indian Ocean. Indian Ocean को क्रॉस करते हुए. Then after, at that time when Portuguese entered into India finally through the sea route, the king ruling over Calicut was Zamorin, who gave the permission to Portuguese to trade in India. The King Zamorin ने क्या किया? पोर्टुगीज को परमिशन दे दी इंडिया में ट्रेड करने के लिए. आफ्टर दैट द पोर्टुगीज एस्टैब्लिश्ड अ फोर्ट इन कलिकट फॉर ट्रेड. आफ्टर दैट उनको परमिशन मिलते ही उन्होंने क्या किया? दे एस्टैब्लिश्ड देयर ओन फोर्ट इन कलिकट फॉर ट्रेड इन 1500 सी. देन आफ्टर दे फोर्टिफाइड इट. उन्होंने उस फोर्ट को फोर्टिफाइड किया and appointed a commander in chief, and they appointed a commander in chief namely, जिसका नाम क्या था? अल-बकर क्यू, टू सेफ गार्ड, उनके फोर्ट को सेफ गार्ड करने के लिए, उसकी प्रोटेक्शन के लिए. मूविंग नॉर्थवर्ड्स. देन आफ्टर मूविंग नॉर्थवर्ड्स, अब वो लोग जो पोर्टुगीज थे वो मूविंग नॉर्थवर्ड्स, अपना बिजनेस अपना ट्रेड है नॉर्थवर्ड्स में फैलाते हुए. उनका जो चीफ कमांडर था, कौन था उनका चीफ कमांडर? देयर चीफ कमांडर इज अल-बकर क्यू. उसने क्या किया? ही कन्क्वायर्ड, उसने कन्क्वायर्ड किया गोवा को कन्क्वायर्ड कर लिया 1506 सी में, विद इन अ स्पान ऑफ 100 years. बहुत ही छोटे स्पान में 100 years के समय में उन्होंने क्या किया? उनका जो चीफ कमांडर था, हु इज द चीफ कमांडर? अल-बकर क्यू. उसने गोवा को कन्क्वायर्ड किया, गोवा पर कंट्रोल कर लिया 1506 सी में. द पोर्टुगीज टुक कंट्रोल ऑफ
मैंगलोर, कोचीन। देन आफ्टर पोर्टुगीज का कंट्रोल कहाँ कहाँ पर आ गया था? मैंगलोर, कोचीन, गोवा, दीव, मुंबई एंड आइलैंड ऑफ लंका। इतनी जगह पर पोर्टुगीज का कंट्रोल आ गया था। दे आर ट्रेडिंग फ्रॉम ऑल दिस प्लेसेस, ओके, दे गॉट कंट्रोल ओवर देयर। नाउ next comes end of the Portuguese rule. Now here the Portuguese, how the Portuguese entered into the India and how they expand their trade in Mangalore, Cochin, Goa, Diu, Mumbai and island of Lanka. Now here the end of the rule of the Portuguese. How the Portuguese rule came to end in India. उनका रूल एंड किस तरह से हुआ, ठीक है। इन द बिगिनिंग ऑफ 17th सेंचुरी के बिगिनिंग में, स्टार्टिंग में द पोर्टुगीज एक्सपांडेड दैट ट्रेड टू बंगाल। 17th सेंचुरी के बिगिनिंग में पोर्टुगीज ने अपना जो ट्रेड है कहाँ पर एक्सपांड किया था? दे एक्सपांडेड दैट ट्रेड इन बंगाल। एट दिस टाइम द मुगल एम्परर शाहजहाँ रूल इंडिया फ्रॉम दिल्ली। और इस टाइम पर जो मुगल एम्परर है, हु इज द मुगल एम्परर? शाहजहाँ। ही इज रूलिंग इंडिया, वो इंडिया को रूल कर रहा था। कहाँ से रूल कर रहा था? दिल्ली से, ओके। Then the Subedar of Bengal complained to Shahjahan about the behavior of the Portuguese. Now उन्होंने पोर्टुगीज ने अपना बिजनेस बहुत जगह फैला लिया था, बंगाल में भी अपना ट्रेड एक्सपांड कर रहे थे। तो एट दैट टाइम जो सूबेदार था बंगाल का, उसने कंप्लेन की। ही कंप्लेन टू शाहजहाँ अबाउट द बिहेवियर ऑफ द पोर्टुगीज। पोर्टुगीज का जो बिहेवियर था उसके बारे में उसने शाहजहाँ को कंप्लेन की कि दे आर डूइंग लाइक दिस। Thus the fort of Hooghly was demolished and the ships were burned as per the order of the emperor. Then after शाहजहाँ ने क्या किया? जैसे ही सूबेदार ने, बंगाल के सूबेदार ने कंप्लेन की शाहजहाँ को about the behavior of the Portuguese, then Shahjahan took the decision and what he did? He demolished the fort of Hooghly. जहाँ पर पोर्टुगीज का जो फोर्ट था हुगली में, उसको डिमोलिश यानी डिस्ट्रॉय कर दिया। और उनके जो शिप्स थे, जो ट्रेड के शिप्स, उसको क्या कर दिए गए? बर्न कर दिए गए, जला दिए गए एज पर द ऑर्डर ऑफ एम्परर, शाहजहाँ के ऑर्डर पर। इन दिस वे, इसी तरह से पोर्टुगीज का रूल खत्म हुआ इंडिया में से विद द एक्सपेक्शन ऑफ टेरिटरीज। उनका रूल इंडिया में से तो खत्म हुआ, लेकिन फिर भी कुछ जगह, कुछ जो टेरिटरीज है हमारी, वहाँ पर उनका रूल था। जैसे दीव, दमन एंड गोवा। ऑल ओवर इंडिया में से दूसरी जगह से जहाँ जहाँ उन्होंने अपना ट्रेड एक्सपांड किया था, वहाँ से तो खत्म हो चुका था उनका रूल, एक्सेप्शन दिस टेरिटरीज, दीव, दमन एंड गोवा, ओके। देन आफ्टर नेक्स्ट कम्स the Dutch. Who's the Dutch? Let's see who's the Dutch. After 100 years of the arrival of the Portuguese, now arrival of the Portuguese, पोर्टुगीज के आने के 100 साल के बाद, 100 years के बाद, at the end of the 16th century, जब 16th century का एंड चल रहा था, the Dutch of Holland, जो हुज द डच ऑफ हॉलैंड, नाउ द नेदरलैंड्स। जो पहले डच ऑफ हॉलैंड है वो अभी क्या है? नाउ नेदरलैंड। वो लोग क्या हुआ? केम टू इंडिया फॉर ट्रेडिंग। वो लोग इंडिया में आए, द डच पीपल केम टू इंडिया फॉर ट्रेडिंग, ओके। इनिशियली दे एस्टैब्लिश्ड फोर्ट एट पुलिकेट एंड मद्रास। नाउ इनिशियली व्हेन द डच पीपल एंटर इनटू इंडिया, दे एस्टैब्लिश्ड देयर फोर्ट इन पुलिकेट एंड मद्रास। They also established a trading center at Agra in year 1663. They established a trading center. उन्होंने एक ट्रेडिंग सेंटर भी एस्टैब्लिश किया जो आगरा में कौन सी ईयर में एस्टैब्लिश किया? 1663 में, ओके। मीनवाइल द ब्रिटिश ऑल्सो अराइव्ड इन इंडिया। और उसी दौरान थोड़े ही टाइम में ब्रिटिशर्स भी इंडिया में अराइव, यानी वो लोग भी एंटर हो गए, इंडिया में आ गए। द डच कुड नॉट विथस्टैंड द कॉम्पिटिशन अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। नाउ द डच पीपल, जो डच पीपल ट्रेडिंग कर रहे थे इंडिया में, ब्रिटिशर्स के आने की वजह से ब्रिटिशर्स ने उन्हें स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिशन दिया। देन आफ्टर द डच पीपल कुड नॉट विथस्टैंड, वो खड़े नहीं रह पाए उस कॉम्पिटिशन में, एंड क्या हुआ? उन्हें वापस लौट जाना पड़ा, ठीक है। Now next come British interest in India. Now meanwhile, जैसे कि मैंने कहा, जब डच पीपल इंडिया में थे तभी meanwhile
ब्रिटिशर्स भी अराइव हो चुके थे इंडिया में और उन्होंने डच पीपल को कंपटीशन में हरा कर डच पीपल का रूल यहाँ से इंडिया से ख़त्म कर दिया था। देन आफ्टर ब्रिटिश इंटरेस्ट इन इंडिया, नाउ ब्रिटिश के इंडिया में आने का उनका क्या इंटरेस्ट था, क्या मोटिव था मैन, ठीक है। ड्यूरिंग द रीजन ऑफ क्वीन एलिजाबेथ ऑफ इंग्लैंड इन द ईयर 1600 CE, the Britishers established the East India Company. During the reign of Queen Elizabeth of England, 1600 CE में जब क्वीन एलिजाबेथ का रूल चल रहा था, ड्यूरिंग हर रीजन, उसका टाइम पीरियड जब चल रहा था क्वीन एलिजाबेथ का, तो ब्रिटिश जो लोग थे उन्होंने क्या एक कंपनी स्टार्ट की थी विद द नेम ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, ओके। उन्होंने अपनी एक कंपनी स्टार्ट की थी, ईस्ट इंडिया कंपनी। द कंपनी बिलोंग टू द मर्चेंट्स हु वांटेड टू इंक्रीज देयर वेल्थ बाय अंडरटेकिंग ट्रेड विद द इंडिया। और इस कंपनी में ऐसे मर्चेंट जुड़े हुए थे जो अपनी वेल्थ, अपनी इनकम इंक्रीज करना चाह रहे थे इंडिया के साथ ट्रेड कर कर, ओके। द फर्स्ट ब्रिटिश शिप अराइव्ड इन इंडिया एट द पोर्ट ऑफ सूरत इन ईयर 1608 CE। नाउ द फर्स्ट ब्रिटिश शिप कहाँ पर आया इंडिया में, एट द पोर्ट ऑफ सूरत इन द ईयर 1608 CE में। एंड हु इज द कैप्टन, कैप्टन W. हॉकिंस, द कैप्टन ऑफ द शिप। और वो जो शिप आया उसका कैप्टन कौन थे, कैप्टन W. हॉकिंस, द कैप्टन ऑफ द शिप वॉज द फर्स्ट ब्रिटिश टू सेट द फुट इन इंडिया। वो पहले ब्रिटिश थे जिन्होंने इंडिया में अपना फुट सेट किया, मतलब वो पहले ब्रिटिश थे जो इंडिया में आए, ओके। ही मेड जहांगीर बट डिड नॉट गेट हिज परमिशन टू ट्रेड। और फिर उन्होंने इंडिया में एंटर होने के बाद, इंडिया में आने के बाद ही एट द टाइम ही मेड जहांगीर, उन्होंने जहांगीर से मिले, बट जहांगीर ने उनको इंडिया में ट्रेड करने की परमिशन नहीं दी। देयर आफ्टर, और फिर उसके बाद सर थॉमस रॉय अराइव्ड इन इंडिया। उसके बाद कैप्टन W. हॉकिंस को तो परमिशन नहीं मिली। देन आफ्टर उनके बाद सर थॉमस रॉय आए इंडिया में। उन्होंने क्या किया, हु एक्वायर्ड, जिन्हें परमिशन, उन्होंने परमिशन ले ली। एस्टैब्लिश द ट्रेडिंग सेंटर इन सूरत, उन्होंने परमिशन ले ली क्या करने के लिए, अपना ट्रेडिंग सेंटर सूरत में एस्टैब्लिश करने के लिए। लेटर दिल्ली वेंट इनटू द हैंड्स ऑफ शाहजहां एंड आफ्टर दैट लेटर ऑनवर्ड्स जो दिल्ली है वो किसके हैंड्स में चला गया, इन द हैंड्स ऑफ शाहजहां। शाहजहां गेव परमिशन टू द ब्रिटिश टू कैरी आउट ट्रेड इन बंगाल एंड आफ्टर दैट जहांगीर के बाद जो दिल्ली है वो किसके हैंड्स में चला गया, शाहजहां के हैंड्स में चला गया। तो शाहजहां ने क्या किया, शाहजहां गेव द परमिशन टू कैरी ट्रेड इन बंगाल। शाहजहां ने ब्रिटिशर्स को परमिशन दे दी कि वो अपना ट्रेड बंगाल में भी एस्टेब्लिश कर सकते हैं, ओके। Here the interest of Britishers in India, okay. Then after next come the French. Similarly, the French also came to India with their own company. Just like Britishers came with their company, East India Company. Similarly, French also came to India with their own company. Now here let's study about the French, okay. The French established the French East India Company in year 1664 CE. Now the French established, जो French people थे उन्होंने अपनी एक कंपनी एस्टेब्लिश की इंडिया में जिसका नाम था फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। कब एस्टेब्लिश की, इन द ईयर 1664 सेंचुरी में उन्होंने अपनी एक कंपनी एस्टेब्लिश की। नाउ लुक, बोथ द कंपनीज आर डिफरेंट। ईस्ट इंडिया कंपनी एंड फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बोथ आर टोटली डिफरेंट। ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज एस्टेब्लिश बाय ब्रिटिश एंड फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज एस्टेब्लिश बाय फ्रेंच, ओके। दे एस्टेब्लिश फैक्ट्रीज इन सूरत, मछलीपट्टनम, पुडुचेरी, नाउ करंटली इट्स पौंडीचेरी। और फ्रेंच पीपल्स ने आकर अपना फैक्ट्रीज कहाँ कहाँ एस्टेब्लिश की, दे एस्टेब्लिश देयर फैक्ट्रीज इन सूरत, मछलीपट्टनम, पुडुचेरी, दैट इज करंटली पौंडीचेरी, ओके। इन सारे जगह उन्होंने अपनी क्या एस्टेब्लिश की, अपनी फैक्ट्रीज एस्टेब्लिश की। द हेड ऑफ द फ्रेंच कंपनी वॉज जोसेफ फ्रैंकोइस डुप्लेक्स। नाउ एट द टाइम हु इज द हेड ऑफ द फ्रेंच कंपनी, the head of the French company was Joseph Francois Dupleix, head थे French East India Company के, okay. Then after
हु हैड द डिज़ायर टू एक्सपांड द यूरोपियन रूल इन इंडिया, और जो हेड थे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के जोसेफ फ्रांकोइस डुप्लेक्स, उनकी ऐसी डिज़ायर थी कि ही वांट्स टू एक्सपांड द यूरोपियन रूल इन इंडिया। वो यूरोपियन रूल को कहाँ पर एक्सपांड करना चाह रहे थे? इंडिया में फैलाना चाह रहे थे। Thus the French and the British stood in the competition against each other to become the stronger European company. Now मैंने आपको कहा कि meanwhile ब्रिटिश एंटर हो चुके थे और ब्रिटिश के एंटर होने के बाद फ्रेंच भी एंटर हो चुके थे। Now both have their own company. ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिशर्स की थी एंड देन आफ्टर फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रेंच की थी। तो ये दोनों कंपनी उस टाइम पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिशन में एंटर हुई एक दूसरे के सामने, क्योंकि वो अपनी अपनी कंपनी को बेस्ट और स्ट्रॉन्ग यूरोपियन कंपनी प्रूव करना चाह रही थी। देयर वर इन्यूमरेबल डिस्प्यूट बैटल्स एंड फाइनली द ब्रिटिशर्स एमर्ज्ड एज विनर्स। नाउ उनके बीच में उस कंपटीशन को लेके इन्यूमरेबल डिस्प्यूट्स हुए, बैटल्स हुई, बट द फाइनली व्हाट द रिजल्ट आउटकम British emerged as a winners. Britishers emerged as a winners. Finally, the East India Company proved itself to be strongest European company. However, the French retained their control over the trading center of Puducherry, Mahe and Chandranagar. Now, then after Britishers winner emerge हुए, तो उसी के साथ फ्रेंच का दूसरी जगह जहाँ कंट्रोल था शायद वहाँ पर कंट्रोल नहीं रहा, एक्सेप्ट ये थोड़ी जगह पर उनका ट्रेडिंग सेंटर थे पुडुचेरी, माहे एंड चंद्रनगर पर, वहाँ पर उनका कंट्रोल अभी भी स्टिल रिटेन था। ठीक है। नाउ नेक्स्ट कम्स ब्रिटिश ट्रेड इन बंगाल। नाउ हाउ द ब्रिटिशर्स डू दैट ट्रेड इन बंगाल, हाउ दे एंटर इनटू द बंगाल। The British first started the trade on banks of river Hooghly and established fort in the year 1651 C. Okay. Now the British first started the trade. ब्रिटिश लोग जो थे उन्होंने फर्स्ट अपना ट्रेड बैंक्स ऑफ रिवर हुगली के वहाँ स्टार्ट किया था और वहाँ पर ही उन्होंने अपने फोर्ट एस्टैब्लिश किए थे, अपने किले एस्टैब्लिश किए थे। कौन सी ईयर में? 1651 CE में। द फोर्ट वर garrison for the protection of the factory and got the permission from the Mughal Emperor Aurangzeb to trade without paying taxes against an annual payment. Now what will happen? The forts were garrison. Now वो जो फोर्ट थे garrison यानी आसपास से फोर्टिफाइड थे अपने प्रोटेक्शन के लिए ऑफ द फैक्ट्री के प्रोटेक्शन के लिए कोई भी एंटर ना हो सके विदाउट द परमिशन, एंड गॉट द परमिशन। और उन लोगों को ब्रिटिशर्स को किसके पास से परमिशन मिली थी? दे गॉट द परमिशन टू ट्रेड विदाउट पेइंग टैक्स, मतलब उनको वहाँ पर बंगाल में ट्रेड करने की परमिशन मुगल एम्परर औरंगजेब के पास से मिल गई थी। औरंगजेब ने उन्हें ऐसी परमिशन दी थी कि दे कैन ट्रेड इन बंगाल विदाउट पेइंग एनी एनुअल पेमेंट और एनी टैक्स। कोई भी एनुअल पेमेंट उन्हें पे नहीं करनी है और कोई भी टैक्स उन्हें पे नहीं करना है। इस तरह की परमिशन मुगल एम्परर औरंगजेब के पास से उन्हें मिल चुकी थी। ठीक है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट कम्स द एक्सपांशन ऑफ ब्रिटिश रूल बिटवीन 1757 CE and 1857 CE. Now we will continue this topic in our part 2. We will continue this topic in our part 2 video. So keep watching my video and thank you. Stay home, stay safe.